we all will benefit from this. From my personal experience, I have been associating with sir for the past 5 and 6 years, and I've gained tremendously by associating with him, through the teachings of Bhagavad Gita. So this is actually this will be a very systematic course. So first of all, let me present a PPT to all of you. Yeah, that would help you to understand it better. So I think I request sir if you can allow me to share the screen. I think. Yes, surely. So this is the Mantra of Life course actually, for BC to Durgapur. So these are the course contents. So first of all, today's session, as you all know, we have this session called as Discover Inner Self, and then we have a consequent session on Discover Ultimate Genius, Discover Manual of Life, then Discover Lasting Solutions, discover sublime joy through sound, discover real eternal love, discover the happy planet, and discover true unity in diversity, right? So all this discover what word which you have heard now, this all of this will help you to discover one thing, that is the best version of yourself. So after undergoing all these sessions, I'm here pretty sure that if you follow the teachings which will be taught through these sessions, you will be definitely able to discover the best version of yourself. So the dates for these sessions, actually today is the first session, and we are going to have the second session tomorrow itself, right? Sunday and Monday, because I hope that in BCT there is holidays on Sunday and Mondays, right? So today and tomorrow will be the first second session. Second and third will be on 6th and 7th, and consequently 13th and 14th. And our final sessions will be on 21st and 22nd of November, right? So on these days, we'll have the certification for all of you, and we have come to know that your college is going to open on 16th of November. So we'll have the certification offline, right, in our center which is there in Durgapur itself. So all of you are invited to attend the certification session there. So now you must be a natural question which comes up is that is the certificate for all of the participants, right? So yeah, certification is there, but certification will be for those who have 80% attendance, in all the classes, and also who have attended 80% of the quizzes, right? So certification will be from them, and also you will be getting special prizes. Those who will be the first 5 toppers, right, in the overall quizzes. So we are going to have quiz after each and every session, and that will be posted in the chat box itself at the end of the session. तो आप लोगों को क्विज अटेंड करने के लिए एंड तक रहना बहुत जरूरी है ना? And one final thing is that after all of this, we are going to have a mega camp, a 2 days camp, that is called as uh, Sankalpa camp. Yeah. So in that Sankalpa camp, basically, we are going to have a very wonderful experience with college students from various other colleges also in Durgapur, like NIT Durgapur, maybe, and BC Rai Engineering College, NSHM College, your college, BC Rai Engineering College. So all these students will come together, and we are going to have a 2 days wonderful camp, spiritual and personality development camp, right? So that's the overall gist, and we have many more things to say and many more things to offer to you, but we'll be informing you, as the time progresses. So finally, I would like to hand over to Nitai Chandimai sir, and once again thank him, to take away his time, from his really very busy schedule. I know him. I know sir very well, and sir has taken such time, to dedicate this to all of you. So all of us are really very lucky that we have sir. So I request all of you to be very sincere and take our pen and copy and hear what sir has to say. Thank you, sir. Thank you so much, Indranil sir. So, yeah. So, hopefully, all of you are able to hear me well. And for your information, once again, I would like to say that please remain quite attentive in this next 50 minutes and take a lot of notes, because what we are going to learn today is something is like quite very much phenomenal. Yeah. So that is surely going to create a revolution in our thought process. Yeah. So we have somewhere around 32, 30, 34 of us. So I like to congratulate you all that you made one of the best decisions in your life by registering in today's session, Mantra of Life.
And today we are going to discuss the first session called Discover Our Inner Self. So before proceeding ahead, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि क्या सभी लोग, मैं जिस भाषा में बोलने जा रहा हूं, ज़्यादा मैं हिंदी में बोलने की चेष्टा करूं, क्योंकि पिछली बार मैंने पोल करवाया था तो उसमें हिंदी बांग्ला ऐसा आ रहा था। तो जो बांग्ला समझते हैं वो हिंदी भी समझते हैं, लेकिन बहुत बार होता है जो हिंदी समझते हो बांग्ला नहीं समझ पाते हैं कभी कभार। तो बताइए, हिंदी रहना चाहिए? मुझे लग रहा है कि हिंदी विल बी गुड। আমি ভাবছি যে হিন্দিতে বললে একটু ভালো হবে, সবাই বুঝতে পারবে, রাইট? সো yes, so I'm also getting some responses like Hindi. Okay, तो हिंदी सर। okay, so हिंदी मातृभाषा है तो let's proceed ahead in Hindi. Okay, so do not I also request that we should proceed, go up beyond this regional sentiments, rather to more universal and cosmopolitan sentiments. That will be better. Yeah, so that's what is the summon substance of learning. Yeah, so let's proceed ahead with our today's session. So again, I like to say a little bit about my introduction. So myself is Nitai Chandra Nimai Das. Myself, I am the graduate in Bachelor of Technology in 2013 batch, and because my upbringing, मेरा जो upbringing था बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इन्वायरमेंट पे हुआ कि मैं हमेशा सोचा करता था कि आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट, सम सोशल सर्विस फॉर द सोसाइटी इन जनरल। मैं कुछ करना चाहता हूँ। सभी लोग तो अपना जीवन जी ही रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, बट आई लाइक टू डेडिकेट माई लाइफ फॉर द सोशल कॉजेज। तो मुझे हमेशा ये अंदर में ये आग की तरह धधकती रहती है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लोगों के लिए। प्रॉब्लम, लोगों के जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, पैसों की कमी नहीं है, सब चीज़ की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन कमी एक चीज़ की है कि लोग दुखी इतने ज़्यादा हैं, लोग सुखी नहीं हैं। सो आई केम अक्रॉस विद द बुक भगवद गीता व्हेन आई वाज जस्ट इन 6th or 7th standard from my father, and after that I proceeded ahead in different places for my studies, and my father was very much keen person to educate me in science of Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is a science for every human being, in which one can get how one can live a life very much properly and like in the best way, remaining perfectly happy and bindas. So that is the knowledge which is missing in the society in general. वो नॉलेज मिसिंग है, और उसके कारण क्या है कि लोग जीवन में तो जी तो लेते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें जीवन कैसा जीना चाहिए इफेक्टिवली नहीं जी पाते हैं। दे हैव एवरीथिंग बट दे आर नॉट हैप्पी इनसाइड। तो ऑफ कोर्स always there is requirement for some people to come out from comfort zone to give out this knowledge. So I thought, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, मेरे घर में ऐसे बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं या फिर जो कजन्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। मैं सोचा कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। या सो आई ऑप्टेड दिस वे ऑफ लिविंग बाय विच आई कैन educate, and I could educate myself and educate masses in the knowledge of Srimad Bhagavad Gita, which is prime necessity of the humankind. So it's very much a great privilege for all of us that we are able to assemble here, even though not physically but on the Zoom, to discuss something very much systematically about the science of life and different things, the churning from Bhagavad Gita. So this is the 8th session course, as already Indranil Bhaiya has told you, and it's going to be a great learning session for all of us. बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप नोटबुक पेन लेके अगर बैठे तो अच्छा है। That will be much more helpful for all of us, and at last there will be a quiz also. Yeah, so in that also you can get help. Yeah, so I'm quickly proceeding ahead with a small little prayer. Yeah, just hold on.
I'm proceeding ahead with small little prayer before I go on with my slides. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Okay, so thank you so much. So now I'm proceeding ahead with the slides. Just wait. Oh, so here it go. All of you are able to see my slides. Hopefully, all of you are able to see. So, discover inner self, one eternal truth that can change your vision. So, it will be better, like some of our friend, if your net is okay, आपका नेट अगर सही है तो आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं, तो मैं आपको देख पाऊंगा, है ना. तो इट विल बी बेटर इंटरैक्टिव सेशन, है ना. हम लोग एक दूसरे को देख पाएंगे तो अच्छा लगेगा कि यस देयर इज सम इंटरैक्टिव सेशन हैपनिंग. सो अगर आपके नेट अच्छे हैं तो मैं रिक्वेस्ट ही कर पाऊंगा. आई कैन नॉट ऑर्डर यू नो दैट यू नो I cannot order, but at least I can request you that please open up your cameras. Now let us have some lively sessions, not just speaking to camera session. Yeah, तो कुछ समय के लिए हम लोग हैं यहाँ पे. So let us have some lively session. And all that question, please keep yourself with you. सभी क्वेश्चन जितने भी आपके क्लास के बीच में आएंगे उसको आप अपने साथ रख सकते हैं. हम लोग लास्ट में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है. तो yes, proceed. Let's proceed ahead. Discover inner self. One eternal truth that can change your vision. Inner self introduction. So, what is the relevance of understanding inner self? What is the relevance of understanding our inner self? हम लोग बहुत कुछ जानते हैं अपनी लाइफ में. हम लोग अभी आप लोग सभी लोग बीटेक कर रहे हैं. बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस में होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होंगे, ऐसे अलग अलग ट्रेड में हैं आप. तो हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को जाना. बट टू रियली लिव ए वेरी हैप्पी लाइफ, अपार्ट फ्रॉम नोइंग थिंग्स एक्सटर्नल, वी शुड ऑल्सो नो अबाउट आवर ओन सेल्फ, है कि नहीं. हमें अपने बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. तभी क्या क्या हो पाएगा कि वी कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ. हम लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हैं. सो हमारी कॉलेज में, स्कूल्स में सब चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है ना. हम पढ़ाया जाता है कि कैसे जॉब चाहिए आपको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप खाना खा सकते हैं, कैसे आप पानी पी सकते हैं. ऐसा तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ क्या है कि खाना पीने के ऊपर ही है. तो हमें जॉब मिलेगा, लेकिन जॉब मिलने के बावजूद भी अगर हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों का जीवन बदतर ही रह जाता है. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑन द बेसिस ऑफ भगवद गीता वन मस्ट नो आवर इटर्नल सेल्फ. दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इम्पेरेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आवर इनर सेल्फ. हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो इनर सेल्फ का इंट्रोडक्शन में बताने जा रहा हूँ. क्या है इनर सेल्फ? तो इनर सेल्फ मतलब क्या, हम लोग अपने, जैसे ये शरीर है ना, शरीर के अंदर में एक एलिमेंट है, एक फैक्टर है जो कि हमें लाइव बनाती है, जो कि हमें निर्जीव वस्तु से अलग करती है, निर्जीव और सजीव में अंतर बताती है. तो वो क्या है? दैट्स कॉल्ड इनर सेल्फ. या सो व्हाट्स दैट इन जस्ट ब्रीफ. जैसे कार के अंदर जब तक कोई ड्राइवर नहीं बैठता है, कार 1 इंच भी बस नहीं कर सकती. उसी तरीके से शरीर के अंदर में जब तक सोल नहीं बैठता है, तब तक शरीर है क्या रहती है? पूर्ण रूप से मृत प्राय रहती है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है जस्ट इन ए वेरी शॉर्ट, मैटर इज डेड व्हाइल सोल इज कॉन्शियस, द सोल इज सुपीरियर टू मैटर. द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैटर, सोल एंड गॉड कैन ब्रिंग ए ग्रेट पॉजिटिव चेंज इन दिस वर्ल्ड. सो नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड. क्यों जरूरी है सोल के बारे में जानना? तो हम लोग जानते हैं
महाभारत नाम का एक बहुत बड़ा इतिहास है, भारत का इतिहास, जिससे महाभारत कहा जाता है। ग्रेट हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष, दैट्स कॉल्ड महाभारत। ये हिस्ट्री है, ये कोई मिथोलॉजी नहीं है, ये कोई मिथ्या नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये हिस्ट्री है, भारत की हिस्ट्री है महाभारत। तो महाभारत की लड़ाई एक हिस्ट्री है जो कि पास्ट में हुई थी। तो उस लड़ाई में क्या हुआ था कि दो पार्टी थे, क्या क्या थे, कौरव और पांडव। तो ये दो पार्टी में क्या हुआ था, लड़ाई हुआ था, राइट। तो उस लड़ाई में क्या हुआ कि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, ही वॉज ए फर्स्ट क्लास एबल्ड पर्सन, उसके पास स्किल की कमी नहीं थी, उसके पास इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की कमी नहीं थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवान शिव तक को भी परास्त किया था, भगवान शिव तक को भी खुश किया था, परास्त नहीं लेकिन खुश किया था। इंद्र अपने पिताजी को भी परास्त कर दिया था, बड़े बड़े दानवों को उसने मारा था। लेकिन जब आती है बात लड़ने की, कहाँ पे, बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में, वहां पे वो क्या होता है, उसका हतप्रभ हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस खो बैठता है, बहुत एंग्जाइटी आने लगती है, उसके पूरे शरीर में जलन होने लगती है, डिमोरलाइज हो जाता है, स्ट्रेस, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके हाथ से उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स कॉल्ड गांडीव, वो फिसल के गिर रहा होता है, उसके पूरे शरीर में जलन हो रहा होता है, आंखों से अश्रु बहने लगती हैं। वो कुछ बोलता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ऐसा। तो हम लोग देखते हैं ये एक ऐसा केस स्टडी है जो कि कई बार लोगों के जीवन में ऐसा होता है, सभी लोगों के जीवन में ऐसा होता है। तो अर्जुना का जो स्थिति था ऐसा ही था, लेकिन उसने क्या किया, उसने इस प्रॉब्लम को कृष्ण के सामने बताया और बताया कि अब बताइए मैं क्या करूं। उसने एक ऐसे व्यक्ति के सामने इस प्रश्न को रखा जो उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता था, वो उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लायक थे। तो उसने सही प्रश्नों को रखा। उसके बाद अर्जुन को कृष्ण बताते हैं द मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज। सबसे पहला चीज जो बताते हैं वह है नॉलेज ऑफ द सेल्फ। वो ये नहीं बताते हैं कि तू पता नहीं है, तुम्हारे गांडी में इतनी ताकत है, तुम ये कर सकता है, फलाना कर सकता है, ढिमकाना कर सकता है। जैसे यूजुअली क्या करते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आदमी कोई भी कहीं भी है, बस वो खूब हवा देते हैं उनको, ये कर सकता है तो वो कर सकता है, भैया ठीक कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है, उसका जो ट्रीटमेंट जरूरी है। अवर नोइंग अवर ओन सेल्फ इज रिक्वायर्ड फर्स्ट टू बी नोन। अगर वो नहीं हमें पता है तो क्या होगा, उस समय तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब आप पहुंचते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो फिर से दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, क्यों करना है, जो भी करना है, अगर लड़ना है तो लड़ना ही क्यों है, एवरीथिंग इज नॉट क्लियर। सो व्हेन वी नो व्हाई वी डू व्हाट वी डू, जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस बहुत महान है, तो हम उस चीजों को बस ऐसे ही कर बैठते हैं, कर पाते हैं विथ ग्रेट फर्वर एंड विथ ग्रेट डिलाइट। लेकिन जब हमारा जो पर्पस बहुत छोटा हो जाता है, तब हम उन कार्यों को करने में हिचकते हैं, और कार्य को भी करते हैं तो वो विफल होता है। तो इस तरीके से अर्जुन जब डिप्रेस्ड थे, तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं उनको, द नॉलेज ऑफ सेल्फ बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्कवर इनर सेल्फ। ही हर्ड द नॉलेज ऑफ द सोल फ्रॉम लॉर्ड Krishna, and then what happened to him? So he became perfectly out of these problems, perfectly out of this problem. So now हम लोग डिस्कवर इनर सेल्फ में एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, ये 5 चीज देखेंगे। दूसरा है साइंटिफिक प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल, देन डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन, मैकेनिज्म ऑफ माइंड एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो पहला चीज, सबसे फंडामेंटल चीज, अगर आप में से किसी को बोला जाए कि आप कौन हैं, तो क्या जवाब मिलेगा, आप अपना नाम बताएंगे, है कि नहीं, हु आर यू, आप अपना नाम बताएंगे। लेकिन अब नाम किसके ऊपर एट्रीब्यूट हो रहा है, हमारे पास जो ये शरीर मिला है उसी का नाम है कि नहीं। तो जन्म के इमीडिएटली बाद में तो हम अपने शरीर पर नाम लिख के नहीं आते हैं, हमें नाम दिया जाता है 6 महीने 6 दिनों के बाद, है ना, षष्ठी बोलते हैं कुछ, तो 6 दिनों के बाद वो नाम दिया जाता है। सो ये किसका नाम है, यार कौन है वो व्यक्ति जिसका नाम दिया गया। तो अगर
मैटेरियली देखा जाए तो प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है एमबीबीएस में। तो एलियोनियस कॉलेज ऑफ मेडिसिन के जो प्रोफेसर हैं एनाटॉमी के, डॉक्टर हैरी मॉन्सन, वो बोलते हैं कि किसी भी मनुष्य के शरीर में ये सारे चीज होते हैं। मोस्टली 60 पाउंड है ना, अगर पूरा वेट है किसी व्यक्ति के शरीर का, तो 5 पाउंड कैल्शियम होता है, 1.5 पाउंड फॉस्फेट होता है, 9 आउंस पोटेशियम होता है ना, 6 आउंस सल्फर, सोडियम, 1 आउंस मैग्नीशियम, और थोड़ा सा आयरन, कॉपर, आयोडीन, ये सब होता है। तो इन सभी चीजों का अगर मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर सभी चीजों का मार्केट वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा आपका कुल मिला के 200 रुपया, सॉरी 110 रुपया। तो कुल मिला के कितना आएगा इसका वैल्यू? बस 110 रुपया आएगा। तो बताइए कि क्या हम लोग 110 रुपए के हैं? आपको क्या लगता है, क्या हमारा जो कॉस्ट है बस 110 रुपया है? बताइए, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। हमारा कॉस्ट क्या 110 रुपया है या फिर उससे ज्यादा है? अगर है तो लिखिए एच। सर उससे ज्यादा है। उससे ज्यादा है। हम अमूल्य हैं भाई, हमारी मूल्य 110 रुपया नहीं। लेकिन अगर हम देखें मैटर का, अगर मार्केट वैल्यू देखें, ये सर देखो 70% तो पानी है, पानी का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, वो तो है ऐसे मिल जाएगा। फिर ये सारे चीज़ों का अगर वैल्यू लेते तो 110 रुपया आता है, तो हमारा इससे 10 है। 110 रुपया से हमारा वैल्यू ऑफकोर्स ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि एक इंटरवल आता है बॉडी में, उसके बाद क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी का जो वैल्यू है पूरा गिर जाता है। जो भी वैल्यू है हमारा, हो सकता है लाख रुपया, करोड़ रुपया, जो भी है, तो उसको कहते हैं DATH, DEATH। तो डेथ के बाद क्या होता है? सब कुछ सेम रहता है, सब कुछ सेम, केमिकल सब कुछ सेम रहते हैं, लेकिन ना उसमें फीलिंग रहती है, ना उसमें थिंकिंग रहती है, ना उसमें कोई इच्छा रहती है, ना डिजायर रहती है, ना कोई मोमेंट होता है। बहुत ब्यूटीफुल चेहरा, ब्यूटीफुल शरीर, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसके पास कोई टपकने भी नहीं जाता। उसको कोई टच भी नहीं करना, डर लगता है उसे, उसको टच करने में। तो क्या है, व्हाट इज दैट थिंग विच इज एक्चुअली मिसिंग? क्या कोई केमिकल उसमें से छूट गया, या फिर कोई प्रोसेस था जो कि चेन साइक्लिक प्रोसेस था और बीच में रुक गया? क्या है वो जिसके कारण इस जो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल शरीर उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पूर्ण रूप से निर्जीव हो जाती है? वो क्या है? क्या है? दैट इज कॉल्ड सोल। सोल, या फिर अगर हिंदी में बोला, संस्कृत में बोला जाए तो उसको बोलते हैं आत्मा, राइट? अभी तक कोई भी साइंटिस्ट अभी तक मतलब मृत शरीर को कुछ ऐसा केमिकल डाल के फिर से जिंदा नहीं कर पाए हैं, या फिर मैटर के अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल्स डाल के, कुछ ऐसा केमिकल्स डाल के कुछ जीवित व्यक्ति को अभी तक नहीं बना पाए हैं। लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट्स हैं, नहीं सभी साइंटिस्ट के नाम नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं क्या कि नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड सोल, देयर इज नथिंग कॉल्ड सोल, फॉरगेट अबाउट द सोल, वी आर ऑल मैटर, हम लोग एक रोबोट हैं बस, और कुछ नहीं। तो उनके लिए ये सबसे पहला आंख खोलने वाला ये मैसेज है वो भगवत गीता देता है। दिस इज रिवोल्यूशनरी, दिस इज रिवोल्यूशनरी, दैट हमारी आइडेंटिटी क्या है वो हमें पता नहीं, और उसके ऊपर झूठला हमें झूठ बताया जाता है कि वी आर जस्ट मैटर, वी आर नॉट मैटर। तो एक्चुअली द अल्टीमेट थिंग इज दैट इज कॉल्ड सोल, विच इज मेकिंग अस लिविंग, जो कि भगवत गीता में बताया गया है। भगवत गीता में बताया गया है कि न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Lord Krishna is telling that the living entities can never have any birth, can never have any death. ना इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है। कभी ना इसका जन्म हुआ, ना कभी मृत्यु होती है। बस क्या होता है, इसका एक बॉडी पकड़ता है उसको, उसका मतलब कि वॉर्न आउट हो जाने के बाद, या फिर उसका टॉर्न आउट हो जाने के बाद वो दूसरे बॉडी पे चला जाता है। सो दिस इज एक्चुअली द वेरी वेरी बेसिक साइंस ऑफ सेल्फ। तो दो चीज है, बॉडी है और स्पिरिट है। द बॉडी जो है वो मैटर है, नो मैटर विच कैन बी टच्ड, हम लोग टच कर सकते हैं,
उसमें कोई चेतना नहीं होती, वो चेंज करते रहता है, हमेशा टेम्पररी होता है और पूर्ण रूप से मृत ही होता है, डेड ही होता है। लेकिन स्पिरिट का क्या है कि पूरा का पूरा उसका जो मॉर्फोलॉजी है ना, पूरा उल्टा होता है बॉडी के। मैटर क्या है, स्पिरिट जो है, सोल है, वो स्पिरिट है, स्पिरिट सोल है, उसमें कॉन्शियसनेस होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो इटर्नल होता है, उसमें कभी मृत्यु नहीं होती और हमेशा वो जिंदा रहता है, भले ही वो बॉडी के अंदर रहे या फिर बाहर रहे। तो हम लोग जो देखते हैं अपने आप को मिरर में, अपने आप को क्या देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन हम वो चेहरा नहीं है, बल्कि वी आर द सोल इनसाइड दैट बॉडी। सो स्पिरिचुअल व्यू ऑफ पॉइंट में अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग सोल्स हैं, पेड़ हो, पत्ते हो, हाथी हो, घोड़े हो, गधे हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, everybody is a separate soul, separate entity. Everything is actually separate entity and separate soul they are. और वो एक पर्टिकुलर टाइप का बॉडी लेके क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। सो नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। ये तो हमने बस थोड़ा सा समझा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सोल। क्या इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है क्या? सो दैट वी आर गोइंग टू सी साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल। तो 4 चीजों के द्वारा हम लोग देखेंगे। पहला है कि कॉमन सेंस। कॉमन सेंस है कि कैसे कॉमन सेंस के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद कॉन्शियसनेस, उसके बाद नियर डेथ एक्सपीरियंस, मेडिकली प्रोवन जो फेनोमिनल है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, रीइंकार्नेशन रिसर्च। तो कॉमन सेंस भारतवर्ष में ये कॉमन सेंस लगभग सभी के पास है। अक्सर लोग बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, लेकिन भारतवर्ष में लोगों के पास कॉमन सेंस अभी भी है। जब कभी किसी के घर पे या फिर किसी के घर पे कहीं पे भी कोई व्यक्ति का डेथ होता है ना, किसी व्यक्ति का डेथ, सो कॉल्ड डेथ होता है, तो क्या बोलते हैं गांव वाले शहर वाले क्या बोलते हैं, अरे उनको तो कल ही देखा था, वहां चले गए। तो हम जब पहुंचते हैं डेड बॉडी के पास तो सब कुछ तो वैसा ही जिसको हमने देखा अभी तक, वो तो पूरा एज इट इज वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन कौन चले गए? कॉमन सेंस है, द सोल हैज पास्ड अवे, आत्मा हैज पास्ड अवे। तो दूसरा चीज में देखते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना। तो हम एक ऐसा मशीन बना सकते हैं जो कि मुस्कुरा भी सकती है, एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो कि सीमिंगली लग सकता है कि ना वो फीलिंग्स दिखा रही है या फिर दिखा रहा है, राइट? ऐसा मशीन का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन सपोज ऐसे बहुत सारे रोबोट्स बनाए जा चुके हैं जिसमें ऐसा सॉफ्टवेयर सिमुलेशन डाला जाता है कि वो लगता है कि हंस रहा है या फिर हंस रही है, लेकिन उसमें वो इलेशन, वो फीलिंग नहीं आती। वैसा वो सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया। जैसे सपोज कैमरा है, कैमरा में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, अगर इस वेवलेंथ का लाइट आएगा तो आपको प्रिंट करके देना है आईसी रेड, लेकिन उसमें चेतना नहीं है, बस सॉफ्टवेयर के अनुसार वो क्या कर रही है, काम कर रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन में, नियर डेथ एक्सपीरियंस में, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो एक बहुत ही फेमस सर्जन है डॉक्टर बिगलो। तो इन्होंने रिसर्च किया है ऑन इटर्नल सोल और बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने किताबें भी लिखी है और रिसर्च किया है, राइट? तो डॉक्टर बिगलो का रिसर्च जो है वो नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या होता है? नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें व्यक्ति एकदम मृत्यु की कगार से पहुंच के वो फिर से बाहर आ जाता है, उसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और उस नियर डेथ एक्सपीरियंस में कभी कभार उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होता है। मतलब क्या? वो शरीर से बाहर निकल के ऑब्जर्व करके फिर से शरीर के अंदर घुसता है और वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्जरी में, जैसे बहुत कभी कभार क्या होता है कि बहुत ही घातक दुर्घटना हो गया, लगभग मरने वाला था, लेकिन सर्जरी हुआ, शरीर किसी तरीके से ठीक ठाक हो गया, तो आत्मा बाहर निकल चुकी है, फिर से वो क्या करती है, अंदर में प्रवेश करती है। ऐसा बहुत सारा सर्जरी में ऐसा आया है कि व्यक्ति को पूरा एनेस्थेसिया दे दिया गया। एनेस्थेसिया मतलब जो होश उड़ाने वाला जो दवा होता है ना, बेहोशी का दवा, तो बेहोशी का डॉक्टर देता है एनेस्थेटिक। तो देने के बाद पूर्ण रूप से बेहोश है, लेकिन व्यक्ति का जब ऑपरेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाता है, तो वो बोलते हैं डॉक्टर को कि अरे आप लोग
ऐसा ऐसा बोल रहे थे, ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो मैं सब कुछ देख रहा था। तो ऐसा बहुत सारा बुक्स है, आप लोग देख सकते हैं गूगल पे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पे द हिस्ट्री एंड साइंस ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। तो देयर आर इन्यूमरेबल बुक्स एंड इन्यूमरेबल केस स्टडीज ओपन इट, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देख पा रहे। देखो वहां पे वो मटेरियल हमारे पास जैसे आंखें वैसी नहीं, लेकिन उसकी जो स्पिरिचुअल सटल बॉडी की आंखें हैं उनसे वो देख पा रहा है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड सोल। ऐसे बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं। सो नाउ fourth is called reincarnation research. So another professor, Dr. Ian Stevenson, Carlson Professor of Psychiatry, University of Virginia, तो उन्होंने 3000 ऐसे केसेस पे रिसर्च किए हैं जिसमें वो स्पॉन्टेनियस रीइंकार्नेशन के ऊपर बोलते हैं। रीइंकार्नेशन मतलब क्या? पुनर्जन्म। जो व्यक्ति पास्ट में था वो किसी दूसरी परिवार में जन्म लेता है और सारी की सारी पिछली जन्म के सब कुछ क्या कर पाता है, वो याद कर पाता है। तो रीइंकार्नेशन रिसर्च के ऊपर ही बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। सो फिर है चौथा में ही आते हैं रीइंकार्नेशन रिसर्च में, डॉक्टर्स ने फोबियाज जो होता है, फोबियाज कभी कभार बच्चों में फोबिया होता है, मतलब किसी भी चीज से भय लगता है, राइट। दे फील फियरफुल ऑफ समथिंग। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी छोटे बच्चे को पानी से बहुत डर लगता है, किसी को धारदार चाकू से डर लगता है, किसी को गन से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो देख नहीं पाता है। तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन आता है कि उन सभी चीजों से पिछले जन्म में उसका बहुत ही खराब एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसके कारण उन्हें अभी भी उस चीजों से डर लगता है। तो फिर इस रीइंकार्नेशन में फिर से तीसरा केस स्टडी आता है ट्विंस का। ट्विंस मतलब क्या? एक ही क्रोमोसोम से दो निकल के आते हैं, मतलब दो व्यक्ति निकल के आते हैं, सब कुछ एक ही है, डीएनए उनका एक ही है, लेकिन डीएनए एक ही होने के बावजूद भी ट्विंस मतलब होता है जुड़वे भाई होते हैं ना, जुड़वे जब पैदा लेते हैं तो उनके एटीट्यूड अलग होते हैं। सब कुछ डीएनए भी सेम हो सकता है लेकिन एटीट्यूड अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या? बोथ पीपल आर डिफरेंट, दोनों में आत्मा अलग अलग है, राइट। सो there is a small little video here. Let's see whether it works out. Okay, so this video is very wonderful video. This will be posted to you in the group. You can see it later on. Soul Survivor, जिसमें एक फॉक्स न्यूज है, इसने कवर किया था एक पायलट का जो कि 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी और वो फिर से जन्म लिया, और सारा का सारा जो नॉलेज है उसका फाइटर प्लैनेट का, सब कुछ बचपन में ही उसके पास सब कुछ पता है और यादें भी रख रहा है कि पिछले जन्म में कैसे कैसे उसकी मृत्यु हुई थी। उसको ड्रीम आती है कि कैसे जापानी लोग उसको अटैक कर रहे हैं, अमेरिकन फाइटर प्लैनेट अमेरिकन यह था पायलट था वो। तो बहुत सारी चीजें उसको सपने में आती है और एक्सप्लेन करता है बचपन में। तो उसके ऊपर है, तो आपको ये भेजा जाएगा ग्रुप में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर केस स्टडी है डॉक्टर यान स्टीवेंसन का, शुक्ला गुप्ता का, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, फिलोसफर्स हुए हैं जो कि रीइंकार्नेशन के बारे में बोले हैं। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलता है, फाइंडिंग माई सेल्फ टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, आई बिलीव आई शैल इन सम शेप और अदर ऑलवेज एग्जिस्ट। जॉन एडम्स, दोज सोल्स हु रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉड were placed here to transmigrate through various species of animals, birds, reptiles, etc. Socrates में ऐसा ही बोलता है, I am confident that there truly is such a thing as living again and living spring from the dead. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन मशीन, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग और रोबोट। तो इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की। कोई कैमरा अगर किसी मूवी को देख रहा है और कोई जज देख रहा है, तो कैमरा बहुत अच्छे से देख रहा है, सब कुछ कवर कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई फीलिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई चेतना नहीं है। लेकिन जज देखता है तो क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, इलेशन होता है, सौरो होता है, गुस्सा भी आता है। तो यही अंतर है क्या, एक रोबोट में और एक आदमी में। तो ये चेतना, कॉन्शियसनेस है, वो तभी आता है। आप कभी देखें जब भारत पाकिस्तान मैच हुआ, सपोज किसी का भी मैच हुआ है ना, तो उसमें अगर किसी रोबोट को बैठा दे या फिर किसी बड़े कैमरे को लगा दो और सपोज विराट कोहली ने चौका छक्का लगाया, तो क्या आप देखें कि कैमरा पूरा कवर कर रहा है, लेकिन क्या वो नाचने लगता है? क्या वो झूमने लगता है?
क्या वो तालियां बजाता है? नहीं बजाता। लेकिन हम बजाते हैं, हम भी देख रहे हैं लेकिन हम बजाते हैं, हम इलेटेड हो जाते हैं। तो ये किसका सिम्टम है? दिस इज सिम्टम ऑफ नॉट द बॉडी, दिस इज सिम्टम ऑफ द सोल। तो देयर हैड बीन अ वेरी ग्रेट what's called the social reformer as well as great saint श्रील प्रभुपाद। उनके साथ एक रिपोर्टर का एक टॉक है, तो बोलते हैं, स्वामी जी, आई थिंक आवर बॉडी इज जस्ट ए कॉम्प्लेक्स मशीन that gets worn out and crashes. Why should we bother about some soul powering the body? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, does your car और कंप्यूटर grow? बोलते हैं कि देखो, आप बोल रहे हो कि अरे सोल के बारे में क्यों समझना, अरे हमें जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, बस एक ऐसा मशीन है जो कि बनाया गया है, किसने बनाया पता नहीं, बना दिया गया बस। तो व्हाई टू वरी अबाउट द सोल? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम्हारा जो कार और कंप्यूटर तुम बनाते हो, क्या वो ग्रो करता है जैसे तुम ग्रो करते हो? क्या कार और कंप्यूटर मेल और फीमेल होती है? जैसे दो कार है, मेल फीमेल कार, दोनों को गैरेज में डाल दो, है ना, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो ना वो वहां से एक छोटी सी कार निकल के आ जाएगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चा कार। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। सो सोल दैट मेक्स लिविंग बॉडी अलाइव, so that is actually the soul only, right? So now let's see three major differences between a living body and a robot. A living body undergoes 6 changes while matter only dwindles. A male and female living body can multiply similar species. Machines cannot reproduce by union. Living body has consciousness, thinking, feeling, willing, while matter has no consciousness. तो ये 6 चेंज क्या क्या है? ये देखिए 6 चेंज है। लिविंग एंटिटीज क्या, जन्म होता है, वो बढ़ता है, मेंटेन रखता है अपने आप को, उसके बाद बच्चों को पैदा करता है, उसके बाद बूढ़ा होता है और उसके बाद मृत्यु होती है। ये 6 चीज होता है। लेकिन रोबोट में और मशीन में क्या होता है? सिर्फ गैरेज से निकलते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस होता है और मतलब फिर से ड्यूंडलिंग होते हैं और उसके बाद वो फिर खत्म हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो फिर खत्म हो गया। तो दिस इज एक्चुअली डिफरेंस। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड टू द मैकेनिज्म ऑफ माइंड। द सोल इज कवर्ड बाय ग्रॉस एंड सटल कवरिंग। तो अब कैसा है हमारा जो सिस्टम बनाया गया है उसके बारे में समझिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट? तो सोल, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। तो सोल क्या है? वो हम है, वी आर द रियल सेल्फ, दैट्स कॉल्ड सोल। और उसके ऊपर में 2 तरह की बॉडी है, सब्टल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी इज मेड अप ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। सब्टल बॉडी मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो उसके अंदर क्या है? सोल है। जैसे ठंडी के मौसम में क्या है ना कि हम लोग कोट पहनते हैं, राइट? कोट के अंदर में हल्का पतला कपड़ा पहनते हैं और उसके अंदर में हमारी बॉडी है, राइट? तो सिमिलरली उसके ऊपर सबसे ऊपर में जो कोट है वो क्या है? ग्रॉस बॉडी, जो कि हम टच कर पा रहे हैं, राइट? वी आर एबल टू टच इट एंड वी आर एबल टू परसीव इट। और अंदर में सटल बॉडी है, वो 3 चीज से बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और अंदर में क्या है? आत्मा है, द सोल, एंड वो 3 चीज से बनती है, इटर्निटी, सत्य, नॉलेज, चित्त एंड ब्लिस, आनंद। तो सोल का जो नेचर है वो आनंद का है, टू ऑलवेज रिमेन ब्लिसफुल, आनंदित, ऑलवेज रिमेन ऑल नॉलेजेबल एंड ऑलवेज रिमेनिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज इटर्नल। उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन इसके ऊपर कवरिंग जब बढ़ जाती है, कवरिंग गंदी हो जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट आवर ओन सेल्फ। तो कैसी कवरिंग आती है? मन के ऊपर कवरिंग आती है। इंटेलिजेंस, माइंड एंड हमारा जो 5 सेंसेस है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सेंसेस, 5 सेंसेस से हम माइंड को सिग्नल्स देते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस क्या करता है? डिसीजन बनाता है। तो उपनिषदों में इसका चर्चा किया गया कि हाउ आवर बॉडी इज जस्ट लाइक ए चैरियट। इंटेलिजेंस क्या है? चैरियट ड्राइवर है। आवर बॉडी इन विच देयर आर 5 सेंसेस, 5 सेंसेस 5 घोड़े के समान है, और हम पीछे में क्या है? बैठे हुए हैं, सोल। तो यहां पे देख रहे हैं कि मन क्या है? रीन्स है, रीन्स, लगाम जो है, लगाम है मन। तो लगाम किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। तो बुद्धि अगर हमारी प्रखर है
तो क्या हो सकती है, हम आराम से बिंदास जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज हमारी बुद्धि ही अगर भ्रष्ट हो गई तो मन क्या रहेगा, विश्रृंखलित हो जाएगा। और मन विश्रृंखलित हो गया, उसके कारण क्या होगा, हमारा जब पांचों इंद्रियाएं हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस क्या है, आंख, नाक, कान, त्वचा एंड जीवा, ये भी विश्रृंखलित हो जाएगी एंड विल बी ऑलवेज इन ट्रबल। सो दैट्स व्हाई लॉर्ड श्री कृष्ण टेल्स दैट द माइंड विच इज कंट्रोल्ड, that is best friend, and mind which is not controlled, the best enemy of our own self। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन होता है जब वो कंट्रोल्ड में नहीं है हमारे, we cannot focus। so it will be your best friend when it control, it's the greatest enemy when it's not controlled। जस्ट लाइक चाकू, चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में है तो बहुत बड़े बड़े अच्छे काम कर सकता है, लेकिन किसी गुंडे के हाथ में, किसी टेररिस्ट के हाथ में तो लोगों का कत्लेआम करेगा। तो चाकू का कोई दोष नहीं है, दोष किसका है, किसके हाथ में है। दैट्स वाई दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस साइंस ऑफ सेल्फ, हाउ टू मैनिपुलेट एंड हाउ टू कंट्रोल आवर subtle body, mind, intelligence, ego, so that the soul itself, our own self, can remain in the safe position। तो कैसे इसको करें हम, तो प्रैक्टिकल चीज है, अगर अच्छी चीजों को मन में डालेंगे तो अच्छा चीज ही हम करेंगे। दैट्स कॉल्ड गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, राइट। सो ऑलवेज वी शुड थिंक दैट हमारे जो मन में है उसमें अच्छी चीजों को डालें, कचड़े चीजों को नहीं डालें। कचड़े चीजों को डालेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मन है, हमारा जो मेमोरी है वो कचड़ा से भरेगा, और कचड़े की जगह पे अच्छा चीज डाले हो सकते थे तो उसके लिए जगह नहीं बचेगा, राइट। सो गुड इन गुड आउट। सो कहाँ से हमें स्क्रिप्ट मिलता है गुड चीज का और बैड चीज का, किताबें जो पढ़ते हैं, मूवीज जो देखते हैं, म्यूजिक जो सुनते हैं, हमारे फ्रेंड्स। तो हमारे फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मन, बुद्धि और अहंकार कैसा होगा, राइट। जैसे मन बोलता है आई एम एन इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड ए सिगरेट एटलीस्ट। इंटेलिजेंस बोलेगा अरे वो अच्छा नहीं है, बट दैट्स ए बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर यू। तो फिर मन बोलेगा कि अरे स्मोकिंग इज कूल, अरे सब लोग पीते हैं यार, तू ही पी ले। बुद्धि बोलेगा अरे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छा नहीं सुनेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा तुम जब देखेंगे कि मेरा बेटा सिगरेट पी रहा है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, डोंट गो इनटू इट। लेकिन अगर हमारा स्क्रिप्ट सही है, हम अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी मूवी देख रहे हैं, मूवी अक्सर तो कलरफुल ही होते हैं, अच्छे म्यूजिक सुन रहे हैं और अच्छे दोस्त हैं हमारे साथ, तो क्या होगा, हमारा इंटेलिजेंस मजबूत होगा एंड वी विल एबल टू टेक द राइट डिसीजंस। अदरवाइज विल सफर, आवर माइंड विल सकम टू डिफरेंट सिचुएशंस। तो क्या क्या बेनिफिट्स है इस नॉलेज का। पहला चीज है कि इस नॉलेज के कारण ही, इस नॉलेज की कमी के कारण ही इतने सारे दंगे हो रहे हैं, इतने सारे रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं। अभी फिलहाल में ही आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बांग्लादेश में क्या हुआ। व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज पीपल दे डू नॉट नो हु आर दे। लोग अपने आप को जानवर की लेवल तक ला देते हैं जब उन्हें पता नहीं कि कौन है वो, और इस तरीके से मारने और मरने और मारने के ऊपर तुल जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी आ सकता है जब लोग अपने आप को पहचाने। लोगों में बहुत बड़ी ये क्या है ना कि अज्ञानता है, बाहर का दिखावा देख के लोग समझते हैं कि वो ये है, और इस तरीके से मरने मारने में उतर जाते हैं। सो कोई भी रिलीजन है, कोई भी एजुकेशनल सिस्टम है, उस एजुकेशनल सिस्टम में अगर इस नॉलेज के बारे में नहीं बताया जा रहा है, मतलब कि वहां के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, वहां के लोगों को अंधकार में ढकेला जा रहा है, वहां के लोगों को दुख में डालने का नियत प्रयास हो रहा है। तो मैं जब देखता हूं चीजों को एज इट इज, तो मुझे लगता है कि पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस बेसिक नॉलेज। तो बॉडीली कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, दे सफर, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स in their own mind, and people are suffering. So when we come with this knowledge, then actually we can come out from bodily consciousness, we can come out from so many different types of negativities, then we can be a better person, emanating and becoming beacon of light in the world. Positive outlook will increase in our life, attitude toward
attitude towards seeing every situation will be improved in our life. So अगर नहीं है, अगर सोल का कॉन्सेप्ट नहीं है किसी के पास, अपने आप को वो नहीं जानता है, तो क्या बोलेगा व्यक्ति, अरे सब कोई सेल्फिश है यार, देख यहाँ पे कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है, मैं कितना लोनली फील कर रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है, मुझे भी सेल्फिश होना चाहिए, मुझे भी किसी भी तरीके से ना कुछ भी करके हुक एंड क्रूक मुझे भी अपना काम निकाल लेना चाहिए, मुझे क्या लेना है दुनिया वालों से, है ना। इस तरीके से निगेटिव चीजें हमारे अंदर आ जाती है। उसके कारण, निगेटिव चीज आने के कारण कभी हम खुश नहीं रह पाते हैं, और कभी उससे क्या होगा, विल नॉट गेट एनी हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। लेकिन अगर हमारे पास सेल्फ का नॉलेज है, तो हम दूसरों को ब्लेम करने के बजाय हम कोऑपरेटिव बनेंगे, हम सीखेंगे, हमारी जो शैली होगी सीखने की होगी, ऑलवेज लर्नर, देन वी विल बी कॉर्टियस, देन विल बी होपफुल, then we can change so many things in our life and into others' life, right? So right use of resources, will use all those things nicely, whatever things, by having this knowledge that we are not just body. So now we ultimately we are at the summary. So we in beginning we saw am I matter or am I spirit. तो हमने देखा कि हम 110 रुपए के नहीं है, हम लोग आत्मा है, बॉडी नहीं है. So then we saw material versus spiritual viewpoint, unseen operator, driver of the bodily car. Then we saw scientific proofs of the existence of spirit, soul. कॉमन सेंस से देखा, कैमरा का और लिविंग पर्सन का एग्जांपल देखा, नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में हमने जाना, रिइंकार्नेशन स्टडीज के बारे में जाना. उसके बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन लिविंग पर्सन एंड रोबोट, कैमरा वर्सेस जज. 3 जो डिफरेंस होता है लिविंग बॉडी एंड रोबोट के बीच में. 6 जो चेंजेस आते हैं, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाय प्रोडक्ट, डिविंडलिंग एंड डेथ. मैकेनिज्म ऑफ माइंड क्या क्या है ना, कैसे हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है, ग्रॉस बॉडी, उसके नीचे सटल बॉडी, उसके अंदर में सोल, द सेल्फ, जो कि सच्चिदानंद है. उसके बाद हमने देखा मन, बुद्धि और अहंकार से हमारा सटल बॉडी बनता है. गीगो प्रिंसिपल हमने देखा, राइट. देन प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज ऑफ द सोल. यूनिवर्सल ब्रदरहुड आएगा, हम लोग इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से ऊपर उठेंगे, पॉजिटिव आउटलुक आएगा हमारे जीवन में, और वी विल एबल टू यूज द रिसोर्सेस rightly. So thank you so much for today's session. Tomorrow's session will be just tomorrow. Hello, sir. If you have any question, any query, आपके पास कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. Hello, sir. And Indranil sir, Indranil bhaiya, are you here with us? Yes, sir. Okay, so please take hold of today's meeting. I'm just coming in 1 minute. After nature's call. Yeah. अच्छा. तो ऐसा मतलब सभी के साथ होता है, मतलब ये कुछ इसके बाद सर बता सकते हैं इसके बारे में? आपके साथ जो सपना आता है वो सफल हो जाता है तो बहुत अच्छा है. आप अच्छे अच्छे सपने देखिए. नहीं सर, जो मतलब तो अच्छा चीज नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है, और कभी कभी अच्छा भी हो जाता है, तो इससे सर रोकना चाहिए या मतलब होने देना चाहिए? देखिए, अभी जो 2 तरह का प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस होता है. एक तरह का लाइफ प्रोसेस होता है जो कि आपके प्रीवियस एक्शंस के ऊपर प्रीडिस्टाइंड चल रहा है, राइट. लेकिन दूसरा लाइफ प्रोसेस होता है, उस एक्शन में, अपने लाइफ में आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस को लाते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लाते हैं, उसका इन्फ्लुएंस जब आता है ना, तो वो जो प्रीडिस्टाइंड था वो ही बदल जाता है. लाइक दैट्स कॉल्ड चेंजिंग द डेस्टिनी, राइट. सो यूजुअली हमारे जीवन में वही हो रहा है जो कि ऑलरेडी प्रीडिस्टाइंड है, यूजुअली हो रहा है. अब बोलोगे कि सब कुछ प्रीडिस्टाइंड कैसे है? या इट्स देयर. सो इन एस्ट्रोलॉजी सच ए ग्रेट साइंस. भृगु संहिता करके एक साइंस, एक बुक है, उसमें आपका सब कुछ बता देगा, एक एक चीज बता देगा कहाँ पे क्या होने वाला है, सब कुछ. वी आर फुल्ली इनटू कंट्रोल. सो देयर शुड नॉट बी एनी क्या बोलते हैं हम, ऐसा कुछ ऐसा अमेजिंग नहीं हमें सुनने में लगना चाहिए कि जो सपने में आया वो पूरा हो गया. हो भी सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. लेकिन सभी का साथ नहीं होता है. हम लोग कुछ ऐसा सपने भी देते हैं, जैसे कुछ ऐसा आटपटांग सपना देख लिए, लेकिन वो सच नहीं होता है. गलत सपने देखें, सच नहीं होता है ऐसा कुछ. सो इट डिपेंड्स, मैटर ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. If you are more absorbed in something, then it happen also. केकुले ने सपने देखा कि एक सांप है ना अपनी पूंछ के पीछे पकड़ रहा है,
तो उसको बेंजीन का कॉन्सेप्ट आ गया, और अभी तक चल रहा है बेंजीन का कॉन्सेप्ट। वो सांप अपना मुख से अपने पूंछ पकड़ रहा है, राइट, चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, जब तक अभी कोई केमिकल ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में कुछ ऊपर नीचे नहीं आया तब तक चलेगा, राइट। सो इट वाज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ केकुले, so it depends upon absorption also, so then we get the results accordingly, and that is also predetermined, and that we have to understand. Understood, Anubhav? Thank you, sir, for your Okay, opinion. thank you, Anubhav. So shall we stop here, or we have anyone further to? Hello, sir. I'm Akshay Anand. Okay, Akshay Anand, please. Am I audible? Yeah, you are audible clearly. Sir, the soul, sir, it must have been created by someone. So who creates soul? Yeah, soul has never created. Soul have been never created. We had been never created. We are beyond time. We are not the function of time, man. We are not the function of time. We are beyond time. We had been existing even sir, before it must creation. Have been created sometime. Yeah. Yes. It Anand? must have been created sometime or somewhere. Yeah, there is nothing called must, and we had never created. This is the science. Yeah, this is beyond logic to say that there must be some time when we had been created. We had never been created. The things which is created is destroyed at particular. जो चीज बनता है वो एक जगह पे क्या हो जाता है, वो बर्बाद खत्म होता है। जो भी चीज जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जिसकी मृत्यु नहीं हो रही है उसका, दिस इज कॉल्ड साइंस ऑफ creation and destruction. Whatever is never going to be destroyed, we had also never been created. Yeah. So soul ka knowledge is sat, is the one principle of soul is called sat. Sat means eternal. It's beyond time. There was never time t is equal to 0 when soul was created. Okay. Yeah, Anand, you can realize it in a matter of course if you practice some little spiritual practices like mantra of life, something like that, then it becomes easy to understand. Yeah. Okay. So yeah, Utsav Kumar is asking, sir, हम अपना मन आध्यात्मिक में कैसे? Okay. So there further discussions we shall be seeing in the further sessions. So we are proceeding ahead for tomorrow, right? Somebody want to ask something? हेलो सर। यस बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर रंजन। अच्छा रंजन, बोलो रंजन। सर मैं बोलना चाहता हूँ, कभी कभी रात को अचानक ऐसा सपना आता है जिसमें डर जाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? मैं अगले सेशन में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका है ना। अगले 2-3 सेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट? ये सर मैक्सिमम को आता है सर, ये सर। बोला। Yeah, so that will be cleared and that will never come. Yeah, for sure. Okay, so for today this much only. Thank you so much all of you for being part of the today's session. It's 7:10 now. We'll take leave for tomorrow. Sir, one more question. Yes. Sir, we only get to hear that we are created by God. So what does that mean? Yeah, वो भी आपको 2-3 सेशन में पूरा क्लियर हो जाएगा। 2-3 सेशन में पूरा। हेलो सर, हेलो। हेलो सर, लेकिन सर मुझे सपने नहीं आते सर। आपको सपने नहीं आते, बहुत अच्छा है। अरे सपने नहीं आते, सपने नहीं आते तो बहुत अच्छा है। देखिए 3 तरह का स्लीप होता है ना। बहुत कम सपने आता है। एक स्लीप होता है जो कि मोड ऑफ गुडनेस में होता है ना, उसमें स्लीप ही नहीं आएगा आपको। मोड ऑफ पैशन में स्लीप होता है जिसमें बहुत सारे सपने आते हैं। मोड ऑफ इग्नोरेंस में स्लीप होता है जिसमें कोई डीप स्लीप, दैट्स कॉल्ड स्लम्बर। वो स्लीप सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए। आपके बिना सपने वाला स्लीप, उसमें पूरा एकदम बिंदास आपको ना नींद आएगी और पूरा शरीर एकदम तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। सपना चाहिए सर, सपना चाहिए, मजा नहीं आता है सोने में। वो सपना चाहिए, ठीक है। तो सपना चाहिए तो सपना से बात करो। मेडिटेशन के थ्रू माइंड पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सपना चाहिए तो सपना से बात करना पड़ेगा। फोन नंबर लो, बात करो, तब सपने आएंगे। मेरे सपना चौधरी, हेलो। मेरे सपनों में वो आई है ना, तब आएगा सब। ओके, ठीक है। देखिए ओके, देखिए सारे क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे फर्दर सेशंस में, है कि नहीं? तो आप फर्दर सेशन रिटर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल गेट क्लियर, मोस्ट ऑफ थिंग्स, ऑल एवरी क्वेश्चंस विल गेट क्लियर। सो
please wait for few days. Okay. Sir, the sessions will be like on every Sunday. Yes, your sound is not coming. Who would like to say? Yeah, Yes. sir. I'm Akshay. आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है. हेलो सर। हाँ बोलिए. Okay, sir. I think the network is not good. माइंड पे कैसे मतलब कंट्रोल किया जा सकता है? Yes, आपको 2 सेशन के बाद पता चलेगा ना. मंत्रा I told no, the mantra meditation will help you. We shall discussing about that. Mantra meditation will help you. कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? We will tell you the exact way to how to control the mind and focus. ओके तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग क्विज भर दीजिए. क्विज लिंक आपको मिल चुका है ना. अभी भी अगर नहीं आप क्लिक किए हैं तो क्लिक कर लीजिए उसको जल्दी से और उसको कर लीजिए. हाँ, जितना जल्दी कर लें तो उतना अच्छा है. ओके 8 o'clock तक कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं. जितना आज कर लें तो अच्छा है, आज तक कर लें तो अच्छा है. ओके ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. थैंक यू सो मच. गुड नाइट. Thank you, sir. थैंक यू. Good night, sir. Good night.